Jai Good day, students. Students, welcome once again in the business studies class. Students, as you all know that your first unit test exam will be going to start from 15th of July. So I think everybody is preparing for the exam. Today, students, I am giving you the revision video of the business studies syllabus. And the business studies, you know that there are two chapters are coming. That is, first chapter is nature and purpose of business, and second is forms of business organization. Students, as you all know that due to the coronavirus and because of lockdown period, all are doing the online studies, and because of that the CBSE has reduced the 30% of your syllabus. So in whatever the topic deleted by the CBSE, that I have given you in the WhatsApp group also. So students, from the second chapter, that is the forms of business organization, some topics are deleted. That is the choice of the form of organization, that I have not given. But in this chapter, you have to study the different forms of business organization and what their characteristics and the merits and demerits. Now students, today I am taking the revision of the first chapter, that is the nature and the purpose of business. Students, in this chapter you have studied about the business, types of business activities, and the objectives of the business risk, and so on. So what is business? Business, you know students, business is the word which is derived from the word busy. It means to remain busy. That is, business means it is connected with it is connected or it is concerned with the purchase or the production of goods and services for earning profit. That means in business we are not only producing goods, but either we can procure goods also. We can procure good, that means we can purchase goods and goods from others to sell in the market. That is also related to the business activity. So students, now what are the characteristics of business? The characteristic of business are: number one is an economic activity. Business, you know, business is an economic activity. The activities of the business are divided into two categories, that is economic activity and the non-economic activity. Generally, there are two types of activities you have seen: economic activities and the non-economic activities. इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब वो एक्टिविटीज जो कि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट is known as economic activity. And non-economic activity, you know, that we are not doing for earning money. That is, we are doing for our self-satisfaction or for helping others. That is non-economic activity. So business is an economic activity. Why business is an economic activity? Because business is we are doing only to earn profit. The aim of business is to earn profit only. हम बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? बिजनेस एक तरह का काम है जो कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पैसा कमा सके. सो बिजनेस वी आर डूइंग ओनली टू अर्न profit, and that is why business is known as the economic activity. The second is production or procurement of goods and services. अभी हमने जैसे आपको बताया था बिजनेस की डेफिनेशन में कि बिजनेस इज नॉट ओनली प्रोड्यूस गुड्स, business is not only the production of goods and services, that is also procured also. That is, you can purchase goods from others and also sell in the market. So business क्या है? Business is the production or procurement of goods and services. मीन्स जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज या तो प्रोड्यूस करते हैं या फिर हम खरीदते हैं दूसरों से, और उसको किस लिए? ताकि हम और कंज्यूमर्स को पहुंचा सके, कंज्यूमर्स को मार्केट में सेल आउट कर सके. सो दैट इट इज नोन एज द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ थर्ड इज sale or exchange of goods and services. Business is an activity in which the sale of goods and services takes place. That is, we are producing goods and services for selling in the market and for the satisfaction of the wants of the consumers. So we are providing, we are purchasing goods and services so that we can sell it in the market. So business is the sale or exchange of goods and services. Business में हम जो भी goods and services है उसको सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. एक्सचेंज, यू नो, एक्सचेंज मीन्स वी आर सेलिंग गुड्स इन फॉर एक्सचेंजिंग मनी. मतलब हम गुड्स को हम बेचते हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है. सो दैट इज बिजनेस इज द सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ नेक्स्ट इज dealing in goods and services on a regular basis. Yes, business is a continuous activity. Business is an activity which is doing regularly, which is continuously. ऐसा नहीं कि हमने एक बार कुछ प्रोड्यूस किया, मार्केट में बेच दिया, बिजनेस खत्म. बिजनेस तभी होगा जब वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा. मीन्स हम प्रोडक्शन करते रहेंगे और बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करते रहेंगे. सो बिजनेस वी आर डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. इसमें हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं या उसको बेचने के लिए, तो हम उस
इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूस रखते हैं, मीन्स ये रेगुलर प्रोसेस है, प्रोडक्शन होता रहता है और गुड्स एंड सर्विसेज को हम मार्केट में सेल करते रहेंगे, क्योंकि वांट्स ऑफ द कंज्यूमर कैन नॉट बी सेटिस्फाइड कंप्लीटली, मीन्स वांट्स आर अनलिमिटेड, इफ वी वांट सेटिस्फाई वन वांट अदर वांट्स में, तो ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स है वो रिकरिंग भी है, अभी हमने कोई चीज़ कंज्यूम की, थोड़ी देर में हमें फिर से उस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, इस तरह से हमें कंटिन्यूस लगातार कुछ ना कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती है। तो बिजनेस में हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम कंटिन्यूसली उसको मार्केट में सेल करते रहें, सो इट इज़ डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग, you know, this is the aim of business also, कि business is an activity which we are doing only to earn profit। मतलब बिजनेस में हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। सो बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सो प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन फीचर ऑफ, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और एलिमेंट ऑफ रिस्क। यस, बिजनेस हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, बिजनेस इज वो एक्टिविटी जिसको कि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क भी है, मीन्स इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर, दैट इज, हो सकता है बिजनेस में हमें बहुत प्रॉफिट हो, या ये भी हो सकता है कि हमें बिजनेस में लॉस भी हो। सो बोथ कैन बी पॉसिबल, प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। तो वी आर हैव टू रेडी टू फेस द रिस्क इन द बिजनेस। बिजनेस में जितनी रिस्क उठाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट। सो बिजनेस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड बिजनेस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। प्रॉफिट जरूरी नहीं कि हमें प्रॉफिट ही हो सकता है, बिजनेस में हमें लॉसेस भी हो सकते हैं, उसके कई कारण हैं। मे बी demand of the commodity will be fall, maybe the taste and consumer of the consumers will be fall, या हो सकता है प्राइस कम हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, गुड्स मीन्स हो जाए, रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो, जिससे कि हम उतना गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जितनी की मार्केट में डिमांड है, या हमने इतना ज़्यादा एक्सेस में गुड्स प्रोड्यूस कर लिया कि मार्केट में वो बिक ही नहीं रहा है, उसकी डिमांड कम हो गई है, या वॉट एवर एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट द बिजनेस हैज़ टू फेस लॉस, बिजनेस हैज़ अनसर्टेनिटी इज देयर, एंड कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी कुछ लोग इतना प्रोडक्ट, मतलब बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, बिजनेस में कई लोगों को काफ़ी लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं। सो बिजनेस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क। सो स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम रिवाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं। नाउ you know that business is an economic activity, so activities are divided into, business activities are divided into two parts, that is economic activity and non-economic activity। So business, economic and non-economic activity, you know that economic activities are the activities which we are doing for earning money। जो भी हम काम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है, और जो काम हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जो पैसा कमाने के लिए नहीं करते, वो नॉन इकोनॉमिक। जैसे कि हाउस वाइफ कुकिंग फॉर द फैमिली, हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स जो है, हमारी मम्मी जो घर में खाना बनाती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या हम कोई भी घर का काम करते हैं, या हम अपने खुशी से किसी के लिए कुछ काट रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रही है, जिसका कि प्रॉफिट अर्न, जिसका पैसा कमाना एम नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, दैट इज द एक्टिविटी विच वी आर जनरली डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट, एंड दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइड टू थ्री कैटेगरीज, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तो बिजनेस में, या प्रोफेशन, या एम्प्लॉयमेंट में। हम इनमें से कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कराएगा। बिजनेस भी हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, प्रोफेशन में भी हम कोई काम जो कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट में हम किसी के अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो भी वो पैसा कमाने के लिए। सो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच वी आर जनरली परफॉर्मिंग फॉर अर्निंग मनी, दैट इज इट इज बिजनेस इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, या हम कहीं और से खरीद रहे हैं, किस लिए? ताकि उसको सेल करके पैसा कमा सकें। एंड प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन मीन्स इट नीड्स सम एक्सपर्टाइज सर्विस। Nobody, anybody cannot become a professionalist.
अगर आपको कोई प्रोफेशन में जाना है तो उसके लिए आपके पास पूरी तरह से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई वो पर्टिकुलर डिग्रीज होनी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यू शुड बी एमबीबीएस और एमडी। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको लॉयर की एलएलबी वगैरह करना पड़ेगा। इस तरह से आप अगर सीए बनना चाहते हैं तो आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, कि डिग्री मतलब कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। या जो भी आप प्रोफेशन में जाते हैं, तो प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन मीन्स एक्सपर्ट्स, एक्सपर्टाइज। इसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जा सकते हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स यू आर डूइंग फॉर अदर्स। आप यहाँ पर किसी और के यहाँ काम कर रहे हैं, यू आर गिविंग योर सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी, दैट मीन्स इफ यू आर रेंडरिंग योर सर्विसेज टू अर्न मनी। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स इफ यू आर वर्किंग फॉर अदर्स, या किसी और पर्सन के यहाँ किसी ऑफिस में या कहीं पर आप जाके काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और उसके बदले में आपको जो पैसा मिल रहा है वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड that activities are divided into two parts: economic activities and non-economic activities, that is business, profession and employment। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, दिस इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रोफेशनल के लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए। और एम्प्लॉयमेंट जो है, आप जब किसी और के यहाँ काम करते हैं, किसी और की नौकरी करते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ताकि उससे आप उसको आपको सैलरीज या वेजेस के रूप में आपको पैसा मिल सके। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज द रिविजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। आधा पार्ट हमने आपको कंप्लीट कर दिया, दैट व्हाट इज बिजनेस एक्टिविटी एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड पार्ट में हम आपको आगे का रिवाइज करवाएंगे।